the meaning of business organization. We completed at both topic. Today we are going to study about the partnership. ठीक है, what are the various types of partnership, what are the features of partnership. We'll do that, and after completing this we'll do the some MCQs on partnership. ठीक है. So before starting the class, who is going to tell me in short that what is the meaning of business organization? Raise your hand. Ma'am, a business organization is one or more business controlled by a people or a group of people. It is a combination of business and organization. They are formed to earn profit, and they are a legal entity. And organization have standards such as structure, goals, and rules and regulations, policies, which they have to follow by the government. Very good. Next, Pratyay. Yes, ma'am. It is a combination. Business organization is the combination of business and organization. And the term business organization describe how business are structured and how their structure help them to meet their goals. And we can also say that business organization is an entity formed for the purpose of caring for commercial enterprises. ये हो सकता है. ठीक है, good. नेक्स्ट, अब मुझे गौरव एंड अनीशा दोनों बताइए व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो हम लोगों ने कल लास्ट क्लास में किया था. व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वन बाय वन. ओके गौरव, फर्स्ट यू जस्ट नीड टू टेल मी 4-5 points and after that Anisha will continue. Ma'am, easy of formation. Ma'am, easy of raising capital. And ma'am. Okay, next, Anisha. Yes, ma'am. Unlimited liability, flexibility, retention of secrecy can be, and location, area, expectation of sales or volumes, freedom of state government or continuity, and which type of business we want to open, a manufacturing or a industrial or service type. So some other factors means these are some operational factors. या operational अगर हम factors को देखें तो flexibility, liability, secrecy, ठीक है. But if we'll see some other factors, ठीक है, so like location कहाँ होगा, business किस type का है, what are the types of business, from where we will get the raw material, who are our target customer, for whom we are making the product. So other factors are also basically taking in consideration, right? So these are business organization. Okay. What is who is sole proprietor? Raise your hand. Yes, roll number 60. Roll number 60. Yes, ma'am. Any individual who run the sole proprietorship is called sole proprietor. And sole proprietorship is? Sole proprietorship is a form of business which is managed by a single person. Okay, next. Very good. Batch 1, roll number 86. Batch 1, roll number 86. बेटा sole proprietorship के थोड़े से features बता दीजिए. Tell me some features of sole proprietor. Sole proprietorship features. Less compliance, control of business, quick decision, and unlimited liability. No perpetual success. Very good. Okay. So let's start with the partnership. ठीक है, पार्टनरशिप के साथ शुरू कर. जो होते हैं उनके बहुत ज्यादा अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है. कैपिटल रेज भी करना हो तो दे आर बेसिकली डिपेंडेंट अपॉन सम आउटसाइडर्स और सोलली वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हर चीज के लिए. In the case of partnership, as name is suggesting this, that partnership का मतलब क्या होता है? Like 2-3 people एक साथ आते हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करते हैं. पार्टनरशिप में यहाँ पर कभी भी जो आपकी लाइबिलिटी होगी, बहुत सारे जो LLPs नहीं होते, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप नहीं होते हैं, उनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. बट वो लाइबिलिटी जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है, बिकॉज वहां पर कितने लोग हैं? एक से ज्यादा लोग हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैनेजरियल स्किल्स, एक्सपर्टाइज की बात करें तो यहाँ पर एक पर्सन जैसे सोल प्रोप्राइटर थे, एक पर्सन का ही सारा स्किल जो था वो यूटिलाइज हो रहा था ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में. बट इन दिस केस यहाँ पर 2, 3, 4 लोग हैं, तो यहाँ पर यू विल गेट अ डाइवर्सिफाइड मैनेजरियल स्किल्स, राइट, और क्रिएटिविटी भी बहुत ज्यादा होगा यहाँ पर.
तो जो पार्टनरशिप होते हैं, इसका अगर मैं सिर्फ मीनिंग बताऊं तो पार्टनरशिप का मतलब ये होता है जहां दो या दो से ज्यादा लोग बेसिकली एक फर्म को स्टार्ट करें, और उस फर्म को स्टार्ट करने के लिए या तो वो ओरल एग्रीमेंट में एंटर हो या तो रिटन एग्रीमेंट में एंटर हो, और फर्म को फिर वो रन करे। पार्टनरशिप डिड कहते हैं, जो पार्टनरशिप जो एक कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट जो बनाते हैं उसको हम पार्टनरशिप डिड कहते हैं। ठीक है, अब पार्टनरशिप क्या है इसके बारे में हम लिख लेते हैं। अभी जो मैंने शॉर्ट में बताया चीजें समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, 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 चलिए ma'am. फिर हम पार्टनरशिप एक्सक्यूज मी मैम, यस मैम ओरल होता है या रिटन होता है? स्टार्ट करते हैं। What they did, they decided all the things कि प्रत्यय, गौरव एंड अनीशा जो माही, all four will decide equal profit shares equal होंगे, कैपिटल भी चारों इक्वल लेकर आए। मान लीजिए 5 लाख, मतलब 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, परसेंटेज भी इक्वल कर लिया। चलिए अब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर्म को शुरू कर देंगे। और कुछ एग्रीमेंट होते हैं जो रिटन फॉर्म में होते हैं। मान लीजिए कि आगे चल के कोई भी कंफ्लिक्ट अराइज हो जाए, इन ओरल एग्रीमेंट वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस, राइट, बट इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डेड वी हैव समथिंग, सम एविडेंस, राइट। अब मान लीजिए कि प्रत्यय और गौरव की मान लीजिए आगे कंफ्लिक्ट हो गई, तो ऐसे केस में व्हाट वी कैन शो द पार्टनरशिप डेड। मान लीजिए कि प्रत्यय ने बोला कि भाई मैं गौरव को नहीं दूंगा पूरा का पूरा शेयर जो है, तो गौरव कहेगा कि वी हैव पार्टनरशिप डेड एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास ये लीगल डॉक्यूमेंट है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव मी द प्रॉफिट शेयर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ओरल भी होता है और यहाँ पर डेड भी बनाया जाता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट। क्लियर हो गया मोनिका? यस। चलिए क्या है इसमें लिखिए, अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस, अ पार्टनरशिप इज अ काइंड ऑफ अ बिजनेस So a partnership is a kind of business. A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more. A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more. बाय मिस्टेक हो गया होगा। Okay. A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made who agree to be co-owners. Co-owners, co-owners, OWNERS, co-owners. Ma'am, more people is made who agree to be the co-owners, comma, मैम मोर पीपल के बाद में okay, who agree to be the co-owners, comma, distribute responsibilities, for running an organization, and share the income or losses that the business generate. A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made who agree to be the co-owners, distribute responsibilities for running an organization, and share the income or losses that the business generates. इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली पार्टनरशिप एक काइंड ऑफ बिजनेस है जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ एक फॉर्मल अग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, और अग्रीमेंट क्या यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट ओरल एंड रिटन दोनों हो सकता है। उसके बाद आगे क्या होगा, दे विल शेयर ऑल द प्रॉफिट एंड लॉसेस
अगर कोई कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है तो उसको भी शेयर करेंगे, लॉस है उसको भी शेयर करेंगे, लोन का अमाउंट पे करना है उसको भी शेयर करेंगे. सो ऑल द लाइबिलिटीज आर बेसिकली शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर्स. ठीक है, and they are responsible for running the business. Means all the partners are responsible for running the business. All are basically co-owners. यानी कि सारे क्या होंगे, एक तरीके से सारे co-owners होंगे, यानी सारे पार्टनर जो होंगे वो ओनर होंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस के. तो इसको हम कहते हैं बेसिकली पार्टनरशिप. क्लियर हो गया सबको? डन. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करूं इंडियन पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप की, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया था आपका 1932 में. और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए गए. ठीक है, जो इंडियन पार्टनरशिप है वो बेसिकली इसको स्पेसिफाई करता है, यानी इसको एक डेफिनेशन है इन द सेक्शन 4. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है. ये बेसिकली स्पेसिफिक लॉ है विच एक्सप्लेन दैट पार्टनरशिप इज एन, मतलब ये क्या बताता है इसके बारे में लिख लीजिए 2-4 लाइन. ठीक है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक, याद रखिएगा कि इसके लिए कौन सा स्पेसिफिक एक्ट बनाया गया था, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. ठीक है, सो द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, क्या एक्सप्लेन करता है पार्टनरशिप को. तो लिखिए, partnership is an association. Partnership is an association. एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कभी या डेफिनेशंस कभी भी लिख रहे हैं तो उसको एज इट इज लिखिएगा, उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो हमेशा जब भी आप लिखिएगा किसी भी डेफिनेशन को तो ऑलवेज राइट एज इट इज, जो भी लिखा हुआ है वही सेम डेफिनेशन. मीनिंग यू कैन चेंज, राइट. चलिए, मीनिंग यानी वर्ड्स जो है आप चेंज कर सकते हो. ठीक है, तो लिखिए पार्टनरशिप, ये अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन between two or more individual, between two or more individual, between two or more individual or parties, individual or parties who have accepted to share. Partnership is an association between two or more individual or parties who have accepted to share the profit generated from the business under the supervision of all the members or behalf of other members, of all the members or behalf of other members, all the members or behalf of other members. ठीक है, बिकॉज पार्टनरशिप जो है यहाँ पर आपके दो लोग से एक से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, लाइबिलिटीज बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटर से दिस इज द बेटर ऑप्शन. बट अगर मैं आगे एक डिमेरिट भी बोलूं पार्टनरशिप की, तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट अराइज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. कई बार पार्टनरशिप बीच में ही खत्म भी हो जाता है. ठीक है, तो पार्टनरशिप जो है एक वॉलेंट्री एसोसिएशन. वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, दैट इज अपने मन से आप एक पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट कर सकते हो, अपनी विलिंगनेस से, कोई कंपल्शन नहीं है. दैट इज एन वॉलेंट्री एसोसिएशन. ठीक है, और ये सारे ज्वाइंटली वर्क करते हैं. ठीक है, एंड द पर्सन जो पार्टनरशिप में एंटर होते हैं, द पर्सन हु एंटर्स इन द पार्टनरशिप, दे आर नोन एज पार्टनर्स. ठीक है, द पर्सन्स हु एंटर इन द पार्टनरशिप इज नोन एज द पार्टनर्स. ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली पार्टनर्स कौन है, जो पार्टनरशिप में जो लोग हैं, एक तरीके से जस्ट उसके जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था वैसे ही पार्टनर्स. क्लियर है? लिखिए, पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन. पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन between two or more individual or parties who have accepted to share the profits generated from the business under the
under the supervision of all the members or behalf of other members ठीक है। आगे चलिए लिखते हैं फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के। तो पार्टनरशिप क्या है इन शॉर्ट सबको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के। और एक और चीज कि देयर आर सो मेनी डेफिनेशन दैट इज रिटन इन योर बुक। अगर कोई भी डेफिनेशन याद, मतलब एक भी अगर डेफिनेशन याद है दैट इज मोर देन इनफ। तो एक डेफिनेशन को आप याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन इज ऑलवेज गिवन बाय सम पीपल। फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसमें देखेंगे कि सबसे पहला जो फीचर्स है वो क्या होगा, 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से ज्यादा लोग। कभी भी पार्टनरशिप के लिए हमेशा आपको 1 से ज्यादा लोगों की ही जरूरत होगी, यानी 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है। एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा। मिनिमम जो हो सकते हैं कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। और अगर हम बैंकिंग की देखें, बैंकिंग के केस में 10 है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर हम देखें 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। और इन द केस मैंने मिनिमम कितने होने चाहिए लोग, 2, और मैक्सिमम इन द केस ऑफ बैंक कितने होने चाहिए, 10, और अदर सेक्टर में 20। यानी कि अगर हम मिनिमम की बात करें तो 2 एंड 10 इज मैक्सिमम फॉर बैंकिंग एंड 20 इज फॉर अदर टाइप ऑफ बिजनेसेस। तो ये है आपका पहला फीचर, 2 और मोर पर्सन। 2 और मोर पर्सन। सागर, yes, what happened? बैंकिंग बिजनेस कहने का मतलब क्या, जिन्होंने मिलकर के कोई बैंकिंग बिजनेस स्टार्ट किया हो, ठीक है, बैंक वगैरह कुछ शुरू किया हो, कोई फॉर्म, ठीक है, तो ऐसे केस में, ठीक है। नेक्स्ट, बैंकिंग बिजनेस, लोन दिलवाना, इस टाइप का कोई काम किया हो पार्टनरशिप ने, पार्टनरशिप फॉर्म में। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट की अगर बात करें, अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट हो गया 2 और मोर पर्सन, सेकेंड इज अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। क्योंकि ये एसोसिएशन है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का, तो ऑब्वियसली ये एक अग्रीमेंट को फॉर्म करेगा, यानी कि रिटन अग्रीमेंट जो है वो हम बेसिकली फॉर्म कर सकते हैं फॉर स्टार्टिंग दिस पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। तो जो अग्रीमेंट होगा इट विल बिकम द बेसिस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द पार्टनर्स, यानी कि एक तरीके से प्रूफ की तरह काम करेगा ये, ठीक है। और इस तरीके के अग्रीमेंट जो होते हैं वो रिटन फॉर्म में होगा। और ओरल अग्रीमेंट भी कुछ हैं, अभी ओरल अग्रीमेंट भी जो है वो आपके अवेलेबल हैं। इन ऑर्डर टू अवॉइड द कॉन्ट्रोवर्सीज इन द फ्यूचर, इट इज गुड टू पार्टनर हैव सम रिटन अग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स अगर लिखना चाहते हो अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में, या लिखिए, चलिए अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में लिखिए, अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में लिखिए, it is an association of 2 or more individual, it is an association of 2 or more individual, it is an association of 2 or more individuals, and a partnership, it is an association of 2 or more individuals, and a partnership arises from an agreement or a contract. It is an association of 2 or more individuals, and a partnership arises from an agreement or a contract, ठीक है। यानी कि ये अराइज जो होगा बेसिकली इसमें लिखिए, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर इंडिविजुअल एंड अ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन अग्रीमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी पार्टनरशिप को हम अराइज कर सकते हैं एक अग्रीमेंट के थ्रू, एक कॉन्ट्रैक्ट बना करके बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत जगह पे अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को एज अल्टरनेटिव लिया जाता है, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दैट, राइट। आगे पढ़िए, जो अग्रीमेंट होगा, द अग्रीमेंट बिकम्स
the basis of association, the agreement becomes the basis of association between the partners. It become basis of association between the partners. यानी कि वो जो कंसेंट से साथ में जुड़ रहे हैं, एक फर्म को शुरू कर रहे हैं, वो उसके लिए क्या होगा, एक अग्रीमेंट जो होगा एक प्रूफ की तरह काम करेगा. ठीक है, एक बेसिस बन जाएगा कि हम इसी अग्रीमेंट के थ्रू क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, आगे लिखिए, such an agreement is in the written form. Such an agreement is in the written form. यानी कि वो जितने अग्रीमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, वो रिटन फॉर्म में होंगे. सच एन अग्रीमेंट इज इन द रिटन फॉर्म में होगा. नेक्स्ट जो होगा रिटन फॉर्म, सच एन अग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, यानी रिटन फॉर्म में होगा. सेकेंड लिखिए, आगे लिखिए, एन ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर. एन ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर. ठीक है, एन ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर. एन ओरल अग्रीमेंट इज ऑल्सो देयर, यानी कि वो सिर्फ रिटन अग्रीमेंट नहीं होगा, ओरल अग्रीमेंट भी होगा. आगे लिखिए, इट इज बेटर टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सीज इन फ्यूचर. इट इज बेटर टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सीज इन द फ्यूचर. It is better to avoid controversies in the future. It is better to avoid controversies in the future. It always good if the partners have, it always good if partners have a copy of written agreement. It is always good if partners have a copy of the written agreement. यानी written agreement as a evidence हमेशा रहना बहुत जरूरी है. Let me tell you one example. Business firm, उन्होंने एक business firm को शुरू किया, एक partnership firm को शुरू किया, and the 3 partners, one my cousin and other 2 person, ठीक है, they entered in the one, they didn't wrote anything, they don't have any agreement. What happened after 6 or 7 years, not even 6-7 years, like 8 to 9 years, their business was very good, everything was fine in the business, but unfortunately because of legal compliances he shut down 2 or 3 branches of that particular institute. ठीक है, तो यानी जो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट टाइप शुरू किया था, and they started it as a partnership firm. 3-4 मतलब 8-10 साल तक बिजनेस ठीक चल रहा था, एंड अचानक से कुछ लीगल कंप्लायंसेस या कुछ प्रॉब्लम या कुछ कॉमर्शियल एरिया नहीं होने की वजह से, कॉमर्शियल जो भी आपके ऑफिसेस वगैरह थे उनको क्लोज करवाया जा रहा था, तो उनकी बिजनेस भी क्लोज हो गई, बंद हो गई. आफ्टर उस दैट दे हैव 4 ब्रांचेस, उनके पास 4 ब्रांचेस थे, उसके बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच ही बचा फाइनली. And the last, and what happened that everyone want to separate it, matlab they want to close this partnership. Ab because they don't have any legal evidence, they don't have any agreement, what happened that so many mishappening was there. मतलब बस ये business जो है, मतलब इस तरीके की situations बहुत बार आ सकती है अगर आपके पास कोई partnership deed या कोई agreement नहीं है. Clear हो गया? And this is one of the live example in front of my eye. Also it's happened as well. So better relationship, and because the person is the known person, we basically literally trust on that person. So because of this partnership deed, we will avoid the conflicts in the future. आगे बढ़ते हैं. Next point. Sharing of profit. My voice is clear now. अब हम आगे देखते हैं क्या है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. एक अनदर जो एक कंपोनेंट है बेसिकली पार्टनरशिप का, दैट इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. अगर कभी भी 3-4 लोग हैं बिजनेस में, तो कोई एक पर्सन, मान लीजिए प्रत्यय, माही और सबने जो फर्म स्टार्ट किया था, तो एक ही पर्सन इसमें से बिजनेस का पैसा तो नहीं लेगा, तो प्रॉफिट विल ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स. लेकिन यहाँ पर एक बात नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर जो आपके शेयर कितना करना है, यानी प्रॉफिट कितना शेयर करना है, रेशियो क्या होगा, उसको बेसिकली यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा. कई बार क्या होता है सिचुएशन कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे ओरल अग्रीमेंट है तो वहां पर इक्वल शेयर होगा, यानी कि सबको इक्वल प्रॉफिट मिलेगा. और कई बार उस पर्टिकुलर प्रॉफिट शेयर के रेशियो को हम पार्टनरशिप डिड में डिस्क्राइब कर देते हैं, यानी 2:2, 3:3 इस तरीके से एक रेशियो बना करके
will describe it in the particular partnership deed. यानी पार्टनरशिप डिड में हम एक रेशियो को डिस्क्राइब करेंगे कि हमारा जो प्रॉफिट है, जैसे एग्जांपल में इसको देखिएगा, जैसे 4 पार्टनर है, मान लीजिए ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कई बार क्या होगा कि इन चारों के शेयर को यानी प्रॉफिट शेयर को हम इस तरीके से करते सकते हैं 3:2, यानी जो जितना भी कमाई होगा, मान लीजिए अगर 1 लाख होगा तो 1 लाख में से 30,000 रुपया प्रॉफिट जो है वो ए ले जाएगा, बी जो है उसको 20,000 मिलेगा, और 3 है इसको भी 30,000 मिलेगा, और डी है इसको भी 20,000 मिलेगा। तो ये जो रेशियो होता है, ये जो रेशियो है जिसमें प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है, इसको कई बार हम कहाँ डिस्क्राइब करते हैं, इसको पार्टनरशिप डिड में ऑलरेडी मेंशन होता है कि हमारा जो शेयर होगा वो कैसे होगा। और ये शेयर जो होता है, ये जो बेसिकली रेशियो मैंने आप लोग को दिखाया, ये कई बार कैपिटल कौन कितना लेकर के आया है उसके हिसाब से डिफाइंड होता है। जैसे ये 4 बच्चे जिन्होंने बोला था मैंने पार्टनरशिप फॉर्म शुरू कर रहे हैं, मान लीजिए इसमें गौरव ने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, ठीक है, और बाकी 3 बच्चों ने कम लगाया, तो ऑब्वियसली गौरव जो है उस ज्यादा डिजर्व करता है प्रॉफिट। तो इस हिसाब से जो एक रेशियो है वो पार्टनरशिप डिड में हम मेंशन करेंगे। तो एक अनदर जो एक बोल सकते हैं सिग्निफिकेंट है पार्टनरशिप का कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड, ठीक है। 1 मिनट, चलिए। सो अनदर सिग्निफिकेंट जो है, जो सेकेंड पॉइंट है वो हम देखते हैं। अनदर जो पॉइंट है, this is the important significance of partnership that you will share the profit as well as you will share the losses. तो इसमें लिखिए according to partnership, according to this partnership, the share of gain and losses, the share of gain and losses यानी income and losses of trading concern or business, of trading concern and business will be shared among the partners, among the partners according to defined ratio, according to defined ratio. Under this partnership, the partnership में जो partners होंगे, they will share all the profit and losses, यानी प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लॉसेस भी शेयर करेंगे, एंड दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रेशियो, यानी जो रेशियो डिफाइंड होगा उसके हिसाब से, या तो फिर इक्वल या तो डिफाइंड रेशियो, ठीक है। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। आगे लिखिए, कम लाइएगा तो आपको प्रॉफिट भी कम मिलेगा, एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, यानी आप लोग 4 लोग काम कर, उस 4 लोगों में से कोई एक कम पैसा देगा तो वी कांट गिव देम इक्वल प्रॉफिट, राइट और नॉट, राइट। हम देंगे कभी भी उसको इक्वल प्रॉफिट हु ब्रिंग लेस अमाउंट। मान लीजिए आप चारों का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं और प्रत्यय 10 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो प्रत्यय और आपको इक्वल कैसे प्रॉफिट हम कभी भी देंगे, नहीं देंगे ना प्रॉफिट इक्वल, कॉपी कैपिटल के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज म्यूचुअल बिजनेस। अच्छा, यहाँ म्यूचुअल वर्ड तो आई थिंक सबको पता होगा, म्यूचुअल क्या होता है सबको पता है, फेसबुक तो सब चलाते होंगे, म्यूचुअल फ्रेंड करके तो इतनी बार मंदी के साथ ये पार्टनरशिप शुरू होगा, म्यूचुअली डिसाइडेड, यानी सब मिलकर इस चीज को शुरू करने का डिसीजन लेंगे। क्लियर हो गया? तो म्यूचुअल बिजनेस है, यहाँ जो पार्टनर्स हैं वो ओनर्स भी हैं, यानी अगर 4 फ्रेंड्स ने मिलकर कोई बिजनेस शुरू किया या 4 लोगों ने बिजनेस शुरू किया तो दे ऑल आर पार्टनर्स एज वेल एज दे ऑल आर ओनर्स, वो तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया। तो यहाँ पर जो फर्म है वो बेसिकली क्या करेगा, anyone act on the behalf of any one of the basically partner, यानी कि यहाँ पर जो एक पार्टनर है
वो बेसिकली दूसरे पार्टनर और वो जो भी पार्टनर है, किसी की भी कोई भी डिस्टर्बेंस या कोई भी चीज आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगी, क्योंकि सारे ओनर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे म्यूचुअल बिजनेस, यानी सबकी रजामंदी से इस बिजनेस को शुरू किया गया है। ओके तो म्यूचुअल बिजनेस में लिखिए द पार्टनर्स आर ओनर्स, द पार्टनर्स आर ओनर्स as well as agents of the firm. The partners are owners as well as agent of the firm, यानी एजेंट भी है वो फर्म के, पार्टनर्स भी हैं, ओनर भी हैं, ठीक है। आगे लिखिए द पार्टनर्स आर द ओनर्स as well as the agent of their firm. Any act performed by any act performed by one partner, any act performed by one partner can affect other partners and firm, can affect another partners and firm, other partners या another partners and firm. मान लीजिए यहाँ पर ये 4 बच्चों को मैं लेके चल रही हूँ एग्जाम्पल में, मान लीजिए प्रत्यय को कुछ काम हुआ और इसने 20 लाख रुपए विड्रॉ कर लिए, कहाँ से, बेसिकली कंपनी के अकाउंट से। अब वो पैसा सिर्फ अकेले प्रत्यय का नहीं था, वो गौरव का भी था, वो अनीशा का, माही, सबका था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ सम इमरजेंसी इसने 20 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए, ठीक है। और प्रत्यय ने वो बेसिकली अमाउंट को जाकर के क्या किया, बेसिकली किसी के साथ कोई अग्रीमेंट कर लिया बाहर में जाकर के, और इसने बेसिकली एक तरीके से चीट किया बाकी के पार्टनर्स को, विदाउट बोले और बात किए पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसे केस में इस तरीके का कोई भी सिचुएशन अगर आएगा, यानी कि कोई भी मिसहैपनिंग होता है, कोई भी पार्टनर का किसी भी तरीके का परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, यानी कि प्रत्यय ने अगर ये चीट किया तो भी सब पार्टनर्स को इफेक्ट होगा, बिजनेस को इफेक्ट होगा। और प्रत्यय 20 लाख रुपीज एक्स्ट्रा ला करके दिया और इसने बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट वो लेकर आया काम के लिए, तो दैट इज ऑल्सो गिव द बेनिफिट्स टू ऑल द पार्टनर्स एंड बिजनेस, यानी वॉट एवर योर एक्टिविटी इज, ठीक है, वो आपके बेसिकली बिजनेस को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा ही। क्लियर हो गया, समझ में आया, पॉजिटिवली एज वेल एज निगेटिवली। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल बिजनेस में समझ में आया, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो ये पॉइंट ये बताता है कि जो पार्टनरशिप है उसका कोई भी एक्टिविटी एक भी पार्टनर का पूरे बिजनेस और पार्टनर्स को इफेक्ट कर सकता है, और ये बिजनेस जो है सारे लोगों के डिसीजन से म्यूचुअली शुरू हुआ है, इसीलिए पार्टनर्स जो है वो ओनर्स भी हैं, एजेंट्स भी हैं, पार्टनर्स, ओनर्स एज वेल एज एजेंट्स। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब एक और चीज है म्यूचुअल, जो मैंने बताया आपको म्यूचुअल बिजनेस में, इसमें एक और चीज मैं आप लोग को ऐड ऑन करना चाहूंगी इसमें पॉइंट, कि बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो सारे पार्टनर्स कैरी करते हैं, और ये एक दूसरे के बिहाफ में भी कैरी कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए कि 4 पार्टनर में से अगर एक पार्टनर जो है बिकॉज ऑफ द इमरजेंसी वो आउटसाइड है, या फिर कुछ काम के लिए, वर्क के लिए ही इज आउटसाइड, तो चारों जो है, मतलब तीनों जो बचे हुए पार्टनर्स है, वो चौथे वाले पर्सन के भी बिहाफ में काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन को साइन करके कुछ चेक्स देने हैं, तो चारों में से कोई भी पार्टनर उस पर साइन कर सकता है, क्योंकि सारे क्या है, एजेंट है, सारे के सारे एक दूसरे के बिहाफ में भी काम या एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं। तो म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बिजनेस, और यहाँ पर एक म्यूचुअल बेनिफिट भी किसको मिलता है, पार्टनरशिप में मिलता है, ठीक है। और हर पार्टनर लाइबल है परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट utmost good faith, ठीक है। यहाँ पर ऑब्वियस सा बात है कि हर एक पार्टनर की एक्टिविटीज दूसरे पार्टनर को इफेक्ट करेगा, तो कोई भी लॉस नहीं चाहेगा कि बिकॉज ऑफ एक भी पार्टनर की मिस्टेक जो है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे फर्म को भारी पड़े, ऐसा कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। तो पार्टनरशिप में अगर वन पार्टनर जो है, एक पार्टनर जो है वो बाइंड करता है दूसरे पार्टनर्स को भी बाय देयर एक्टिविटीज एंड दैट अफेक्ट द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पार्टनर्स की ड्यूटी है कि अगर वो कोई भी बिजनेस की डीलिंग करते हो, यानी कि जैसे मैंने प्रत्यय के बारे में बताया अभी कि प्रत्यय गया और उसने डील कर लिया, ठीक है, किससे भाई, किसी भी आउटसाइडर से, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन, गुड फेथ का मतलब क्या होता है, भरोसा बनाए रखना,
यहाँ पर कभी भी हर एक पार्टनर को एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। आप कोई भी सिक्रेसी मेंटेन मत कीजिए। बीइंग अ पार्टनर एंड सारे ओनर से सारे इक्वल हैं, तो ऐसे केस में कोई भी बिजनेस डीलिंग हो, कोई भी एक्टिविटी हो, उसको आप डिस्क्लोज कीजिए बाकी पार्टनर्स को भी, ठीक है। हर इंफॉर्मेशन जो है वो एक दूसरे को सच ट्रू बताइए, ऑनेस्टी मेंटेन रखिए किसमें, अपने पार्टनरशिप फॉर्म में। तो बेसिकली जो पार्टनरशिप होता है ये इसी के लिए ज्यादातर जाना जाता है कि यहाँ पर जो ट्रस्ट होता है वो बहुत जल्दी बिल्ड होता है। इन द केस ऑफ कंपनी मे बी सुपीरियर इज नॉट गोइंग टू बिलीव ऑन देयर सबऑर्डिनेट, बट बिकॉज द पार्टनर्स आर द ओनर्स, समटाइम दे आर फ्रेंड्स, समटाइम दे आर रिलेटिव, समटाइम दे आर नोन, so this kind of thing is very much happening in the partnership firm कि यहाँ पर हर चीज ट्रुथ और प्रॉपरली ऑनेस्टी के साथ डिस्क्लोज किया जाता है सारी एक्टिविटीज के बारे में। और अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स विल अराइज, ठीक है। तो अटमोस्ट गुड फेथ, भरोसा बनाए रखा जाता है किसमें, पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अब यहाँ एक चीज सिमिलर हो गया किसके साथ, आपका सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ। यहाँ पर भी क्या सिचुएशन है, आपकी लाइबिलिटी जो होगी वो अनलिमिटेड होगी, यानी हर जो फर्म का जो पर्सन होगा, जो जितने पार्टनर्स होंगे वो सारे लाइबल होंगे इन द केस इफ योर बिजनेस विल डिसॉल्व। अगर आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, ठीक है, बंद हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा, तो ऐसे केस में सारे के सारे पार्टनर्स जो होंगे वो लाइबल होंगे उस लोन के अमाउंट को, उस क्रेडिट के अमाउंट को चुकाने के लिए। और अगर क्योंकि पार्टनरशिप डेड है तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल, सारे लोगों की पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं, यानी कि योर पर्सनल एसेट इज ऑल्सो बेसिकली क्या हो जाएगा, दैट इज इन द रिस्क इफ योर बिजनेस विल शट डाउन। क्लियर हो गया, तो दैट इज नोन एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर सारे लोगों की प्रॉपर्टी वगैरह भी जा सकती है बिजनेस को बेसिकली अगर बंद हो गया लोन वगैरह चुकाने में। नेक्स्ट लिखिए रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अब देखिए एक एग्जाम्पल, ये इसको समझाने का, ये बहुत समझ में आ जाएगा आप लोगों को, इजीली देखें। अब यहाँ जो चार पार्टनर थे ए बी सी डी, अब इसमें से जो ए है उसका क्या था रेशियो, 3:2:2:3:2 था। अब भाई कह रहा है ए बोल रहा है कि मेरा जो हिस्सा है ना इसका कुछ परसेंट मैं बी को देना चाहता हूँ, यानी ट्रांसफर करना चाहता हूँ कुछ इंटरेस्ट बी को, ठीक है। तो क्या ये कर सकता है ऐसा? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? जब तक सी और डी राजी नहीं होगा कि ठीक है आप अपना इंटरेस्ट इसको दे सकते हैं, तब तक ये मतलब अगर चार पार्टनर्स हैं तो दो आपस में डिसाइड कर ले, ये नहीं पॉसिबल है। यानी चारों का जब तक कंसेंट नहीं होगा इस डिसीजन को लेकर के, तब तक ए कैन नॉट ट्रांसफर द इंटरेस्ट टू द बी। समझ में आई बात? यानी कि कोई भी प्रॉफिट, कोई भी शेयर या फिर आपकी प्रॉफिट में से जो भी आपका रेशियो है, अगर यू वांट टू चेंज इट एंड यू वांट टू इंक्रीज या किसी को देना आप चाहते हैं, देना चाहोगे, तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है तब तक जब तक एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो हैं इसके लिए राजी नहीं होते हैं, इसके लिए अपना कंसेंट नहीं देते हैं, या इसके लिए बेसिकली बोल सकते हैं मानते नहीं है। तो ये वाला सिचुएशन आपका रहेगा हमेशा पार्टनरशिप में कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द पार्टनरशिप विदाउट द प्रायर कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। यानी कि जो बाकी जो सी और डी थे, जब तक वो नहीं मानेंगे ए जो है वो बी को ट्रांसफर शेयर इंटरेस्ट नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लॉफुल बिजनेस, ठीक है। कोई भी पार्टनरशिप बनता है बिजनेस को बेसिकली चलाने के लिए, ठीक है। एसोसिएशन है जहां ज्वाइंटली लोग मिल रहे हैं,
बिजनेस जो है एक लॉफुल बोल सकते हैं कि एक्शन है। पार्टनर्स जो है उनको कुछ लीगल चीजों को मानना पड़ेगा, और साथ साथ में किसी भी तरीके की थेफ्ट, स्मगलिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज में यू डोंट नीड टू इन्वॉल्व। ठीक है, मतलब आपका जो बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मानते रहिए। जो भी ऐसी चीज है जो पूरे कंट्री के हित में नहीं है, कंट्री के लिए नुकसान या बोल सकते हैं कि हार्मफुल चीजें, हार्मफुल एक्टिविटीज है, जैसे स्मगलिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, जो सोसाइटी के लिए क्राइम है, तो ऐसी चीजों में आपको इन्वॉल्व या इंडल्ज नहीं होना है। द पार्टनरशिप फॉर्म विल बी रन अकॉर्डिंग टू ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस मेड बाय द गवर्नमेंट, राइट? So business should always be lawful. Business always be lawful. Yes, प्रत्यय, पार्टनरशिप फॉर्म होना चाहिए। जो पार्टनरशिप, जो बिजनेस आप चला रहे हैं वो हमेशा लॉ और लॉफुल और रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज के हिसाब से होना चाहिए। आपकी कंट्री को और आपकी सोसाइटी के लोगों को, पब्लिक को किसी भी तरीके का कोई हार्म ना पहुंचाओ। ठीक है, अब मान लो कि भी लॉफुल। नेक्स्ट, नो लीगल एंटिटी। नो लीगल एंटिटी, क्योंकि पार्टनरशिप जो फॉर्म है यहाँ पर कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाली बात नहीं है कंपनी की तरह। यानी जो कंपनी है वो सेपरेट नहीं है आपके पार्टनर से, तो यहाँ पर वही, इसीलिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। इसीलिए कोई भी इंसॉल्वेंसी, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ द पार्टनर जो है, कोई भी ऐसी चीज होगी तो हो सकता है कि आपका बिजनेस खत्म हो जाए। ठीक है, सो अ पार्टनरशिप फर्म हैव नो लीगल एंटिटी, एंड इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट और मिसहैपनिंग, ठीक है, अगर होता है ऐसा कुछ भी, तो ऐसे केस में इट माइट बी पॉसिबल, ठीक है, अगर इंसॉल्वेंसी होगा तब भी आपका पर्सनल एसेट पूरा चला जाएगा। अगर आपका बेसिकली किसी की डेथ होती है पार्टनर्स में, या रिटायरमेंट हो जाता है, तो ऐसे केस में बिजनेस खत्म भी हो सकता है। लाइक कंपनी की तरफ परपेचुअल एग्जिस्टेंस ये इसमें भी नहीं है। हो सकता है कि यहाँ पर भी अगर आपका बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाए बिकॉज ऑफ द एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट लाइक रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी एंड डेथ ऑफ एनी पार्टनर। क्लियर हो गया सबको? फीचर सबको क्लियर हो गया? अवेलेबल है तो कई बार बिजनेस को वो रन कर लेता है। ठीक है, तो लेकिन कंपनी के सिचुएशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि कंपनी जो है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो उसकी डेथ नहीं होगी। बट यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि आप और पार्टनर्स और बिजनेस जो है वो अलग नहीं है। किसी भी तरीके का पार्टनर के साथ कोई भी इंसिडेंट अगर हो रहा है ना, तो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एक पार्टनर था, मानते हैं सारी इक्वल है, बट एक ऐसा पार्टनर है जो बेसिकली उस बिजनेस को प्रॉपर्ली रन कर रहा था और अचानक से उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में जो 3 पार्टनर है, इट माइट बी पॉसिबल कि वो हैंडल ना कर पाए बिजनेस और बिजनेस बंद हो जाए। समझ रहे हो? ठीक है, तो यहाँ पर सिचुएशन ऐसा अराइज हो सकता है, मतलब देयर इज द करके लॉसेस को बियर किया जाता था। तो यहाँ तो मैम यहाँ पे जो सारे पार्टनर्स है उनके भी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी मतलब सेल करके लॉस को बियर किया जाए। जा सकते हैं। तो मैम यस आलोक, मैम म्यूचुअल बिजनेस एक बार और थोड़ा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी बिजनेस जो है सारे पार्टनर्स हैं, और सारे अगर पार्टनर्स हैं आपके, तो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अगर एक भी पार्टनर कुछ भी करता है, ठीक है, कोई भी मिसहैपनिंग कुछ भी होगा, तो बाकी पार्टनर्स को, फर्म को भी इफेक्ट करेगा। आपने बिजनेस म्यूचुअली यानी सबके कंसेंट के साथ शुरू किया है। कोई भी पार्टनर किसी और पार्टनर के भी बिहाफ में काम कर सकता है, यानी अगर कोई पार्टनर एब्सेंट है तो दे कैन, द अदर 3 पार्टनर्स कैन डू दैट वर्क। ठीक है, तो इसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल बिजनेस, जहां कोई भी पार्टनर किसी के भी बिहाफ में काम करेगा, कोई भी पार्टनर की एक्टिविटी दूसरे को भी इफेक्ट करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया आलोक? यस मैम। So see you all in the next class. Yes, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a great day. थैंक यू मैम।